discuss regarding the abnormalities of the menstrual cycle. menstrual cycle के abnormality देख रहा था. So menstrual cycle abnormality में सबसे पहला dysmenorrhea के बारे में देख रहा था. dysmenorrhea is the what is dysmenorrhea? Sorry, amenorrhea बारे में स्टडी करा था. amenorrhea. Okay. amenorrhea. amenorrhea is the absence of menstrual cycle. Okay. menstrual cycle absence को हमने amenorrhea बोलते हैं. Okay, amenorrhea has two parts mainly: pathological amenorrhea, physiological amenorrhea, and pathological amenorrhea. Physiological and pathological amenorrhea. Okay. In physiological amenorrhea there are two types again: primary physiological amenorrhea and secondary physiological amenorrhea. Secondary physiological amenorrhea. So physiological amenorrhea means absence of disease, absence of pelvic pathology. The absence of pelvic pathology, amenorrhea is present. मतलब menstruation absent होता है, कोई भी disease होता नहीं है. Okay, इसको physiological amenorrhea बोलते हैं. Pathological amenorrhea means presence of pelvic pathology that may lead to the amenorrhea. Presence of pelvic pathology, pelvic cavity का अंदर कोई भी organs का कोई बीमार होता है, disease होता है, इसके वजह से लिए menstrual cycle absence होता है. Okay, physiological में क्या होता है? menstrual cycle absence होता है कोई भी बिना कोई बीमारी से. Okay, primary amenorrhea मतलब it is a absence of menstrual cycle before the age of 16. Okay, 16 ईयर से पहला जो amenorrhea नहीं होता है उसको हमने primary physiological amenorrhea बोलते हैं. Normally this is a normal है. Okay, this is a normal physiological amenorrhea in the female. Female में normally 16 ईयर से पहला amenorrhea होता ही होता है. Okay, secondary amenorrhea means it is a absence of menstrual cycle means presence of menarche. menarche होता है. menarche means it is a okay startage of the menstrual cycle. Okay, menstrual cycle चालू होता है पर क्या होता है? Okay, menstrual cycle start होता है पर due to the physiological process, the absence of menstruation. For example बोला था मैंने pregnancy. Okay, pregnancy में menstruation बंद होता है. Okay, lactation, pregnancy, lactation, menopause. Okay, these are what physiological process. बॉडी का physiological process के वजह से menstruation बंद है. Okay, ये secondary physiological amenorrhea. physiology means normally होता है. Okay, ये बीमारी की वजह से नहीं होता है, physiological वजह से. menarche होता है but menstruation is absent because of the pregnancy, lactation, menopause. Okay, pathological amenorrhea में pathological amenorrhea means it is a presence of pelvic pathology that may lead to the absence of menstruation. Okay, pelvic pathology होता है, इसकी वजह से menstruation absence होता है. इसको ट्रूमा होगा, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, एडेशन हो, जो भी रीजन से ये पेल्विक पैथोलॉजी से मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होता है. ओके, पैथोलॉजिकल अमीनोरिया में दो टाइप्स है. वन इज हिडन अमीनोरिया. ओके, हिडन अमीनोरिया बोलते हैं. ओके, सेकेंड वन इज hidden amenorrhea. Second one is true pathological amenorrhea. Hidden pathological amenorrhea, true pathological amenorrhea. Two types in pathological amenorrhea: hidden pathological amenorrhea, true pathological amenorrhea. Hidden pathological amenorrhea में क्या होता है? This is the amenorrhea is present. This is amenorrhea क्यों होता है? amenorrhea even after above the age of 16 16 एज के बाद भी menstruation चालू नहीं होता है. ओके, ड्यू टू द सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस. पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा हम बाद में देखेगा. उसका डेफिनेशन क्या है? हिडन पैथोलॉजिकल amenorrhea में क्या होता है? ओके, सॉरी, हाँ, हिडन one minute, sorry, I am confused. Hidden amenorrhea means hidden मतलब here the menstruation is occurs but क्या होता है? Okay, इसमें क्या होता है? But outflow is invisible. Outflow is invisible or obstruct the outflow.
ऑब्स्ट्रक्ट द आउटफ्लो। मेनिस्ट्रुएशन हो रहा है बॉडी का अंदर, मैं समझाया था सबसे पहला, ओके सबसे पहला हाइपोथैलेमस, ओके हाइपोथैलेमस रिलीजेस द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी, सो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस द ओके सो TSH and luteinizing hormone, then it stimulate the ovary to release estrogen and progesterone, estrogen and progesterone और ओवम रिलीज के लिए हेल्प करते हैं। पर इसमें सब नॉर्मल है, इसमें क्या होता है वेजन ऐसा ब्लड बाहर नहीं आता, अंदर ओवम रिलीज हो रहा है, ओके यूट्रस में आ रहा है पर ब्लड बाहर नहीं वो आ रहा है, इस कंडीशन को हमने हिडन अमीनोरिया बोलते हैं। हिडन मींस something is hidden, okay hidden amenorrhea, okay menstrual blood flow is fail to expel out through the vagina, vagina से बाहर आने में फेल होता है, ओके इसको हमने क्या बोलते हैं हेमाटोमेट्रा, 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 हेमाटोमेट्रा मींस जो भी ब्लड आ रहा है, ब्लड यूट्रस में कलेक्ट हो रहा है, वेजिना थ्रू बाहर नहीं आ रहा है, उसको हमने हेमाटोमेट्रा बोलते हैं, ओके हेमाटोमेट्रा, हेमाटोमेट्रा मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द यूट्रस, ओके फेल टू एक्सपेल आउट थ्रू द वेजिना, ओके दैट इज अ हिडन अमीनोरिया में होता है, ओके नेक्स्ट इज ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया। ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया में क्या होता है, ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया अगेन हैज टू टाइप्स, प्राइमरी, ओके ये हिडन अमीनोरिया it means the menstrual blood flow is failed to expel out through the vagina, that is a hidden amenorrhea, okay next is true pathological amenorrhea में again two types है, okay primary true pathological amenorrhea, secondary true pathological amenorrhea, this is again two types, primary true pathological amenorrhea, then secondary true pathological amenorrhea, secondary true pathological amenorrhea. Primary true pathological amenorrhea means it is a amenorrhea due even after the above the age of 16 years, 16 ईयर के बाद भी वो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है, ओके 16 ईयर से पहले हो गए तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया है, नॉर्मल है, ओके पर 16 ईयर के बाद भी अमीनोरिया है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ, मेनर्के इज एब्सेंट इवन आफ्टर द एज ऑफ 16, ओके 16 इयर्स इज द नॉर्मल, 14 to 16 years is the normal puberty age of the female, okay इसका 14 से 16 ईयर के बीच में मेनर्के होना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो उसको प्राइमरी ओके ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं, प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया, ओके सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया मींस, ओके सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया मींस मेनर्के इज प्रेजेंट, मेनर्के होता है, मेनर्के इज प्रेजेंट, मेनर्के इज प्रेजेंट मतलब पहला मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली होता रहता है, now MC is absent, now अभी now menstrual cycle is absent, अभी menstrual cycle absent है, okay without any physiological process, without any pregnancy, without any lactation, without any menopause, okay अगर पहला मेनर्के होता है बाद में प्रेगनेंसी के लैक्टेशन की वजह से अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो दैट इज अ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया में आता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया में क्या है, मेनर्के इज प्रेजेंट बट नो मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट, अभी मेंस्ट्रुएशन नहीं है, पहला मेनर्के हुआ, सबसे पहला एक दो बार मेंस्ट्रुएशन हुआ है, अभी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग इज फॉल्ट, ओके विदाउट एनी प्रेगनेंसी, विदाउट एनी लैक्टेशन, सो इसको हमने ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया बोलते हैं, ओके So this is regarding the types of amenorrhea. Amenorrhea is the absence of menstruation, mainly two types, physiological amenorrhea, pathological amenorrhea. Physiological amenorrhea means without any disease, without any pelvic disease, absence of menstruation. Primary physiological amenorrhea, before the age of 16 there is absence of menstruation, this is a normal condition in the every female, that is called as primary physiological amenorrhea. Secondary physiological amenorrhea means absence of menstruation due to the physiological process like lactation, pregnancy, menopause, okay so next pathological amenorrhea means due to the pelvic pathology, absence of menstruation, it has again two types, okay primary pathological amenorrhea and secondary pathological amenorrhea में first one is hidden amenorrhea and true pathological amenorrhea. Hidden amenorrhea means menstrual blood is failed to expel out through the vagina, so means blood is collected in the
यूट्रस ओनली। ओके, नेक्स्ट ट्रू पैथोलॉजिकल एमेनोरिया में अगेन टू टाइप्स, प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, even after the age of 16 the female is unable to start menstruation, that is the primary true pathological amenorrhea. Okay, secondary true pathological amenorrhea, menarche is present before menarche is present, but now absence of menstruation, okay, due to some pathological condition. So this is what the secondary true pathological amenorrhea. Okay, for example मैं बता देता हूँ, आपको इसके हिसाब से मालूम होगा एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, ओके, एक फीमेल है, सो इसका एज है, मेनार्के स्टार्ट हो गया, मेनार्के स्टार्ट है 16 ईयर पे। ओके, नाउ उसका मेनार्के 16 एज पे चालू हो गया एक फीमेल को। ओके, इसका अभी का एज है, नाउ एज इज 22 है। ओके, अभी का एज कितना है, 22 का एज है। ओके, एंड एमसी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। ओके, एंड नो लैक्टेशन नो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नहीं है, नो लैक्टेशन एंड नो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी नहीं है, कोई लैक्टेशन भी नहीं है। ये कौन सा अमीनोरिया होगा? ओके, सोच लीजिए, मेनार्के था पहला 16 इयर्स में मेनार्के चालू हो गया, अभी का एज उसका 22 है, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो गया, तो प्रेगनेंसी भी नहीं है, लैक्टेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट इज अ ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया, मींस सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया, सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया। एक फीमेल है, 20 ईयर का फीमेल है, 20 ईयर्स का फीमेल है। ओके, उसका अभी तक मेंस्ट्रुएशन चालू ही नहीं हुआ, अभी तक मेंस्ट्रुएशन चालू ही नहीं हुआ, मींस इट इज अ एक कौन सा कैटेगरी में आता है, ये प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया, दिस इज अ सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया, दिस इज अ प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल अमीनोरिया। ये फीमेल है, ओके, एक फीमेल है, उसका 15 साल में मेनार्के चालू हो गए। ओके, 15 साल में मेनार्के चालू हो गया, अभी का एज है उसका 20। ओके, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, 20 ईयर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। ओके, ये प्रेग्नेंट है, सो ये कौन सा अमीनोरिया हो गया? दिस इज अ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया है। अभी 8 साल की एक लड़की है, उसको मेंस्ट्रुएशन चालू ही नहीं है, सो उसको क्या बोलते हैं हमने, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया। ओके, इस तरीके से, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनोरियाज आर अपीयर इन दी फीमेल, फीमेल में डिफरेंट टाइप्स का अमीनोरिया होता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एटोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर अमीनोरिया, अमीनोरिया का क्या क्या फैक्टर्स होगा, क्या क्या एटोलॉजिकल फैक्टर्स होगा, हमने इसके बारे में देखना है। सो एटोलॉजिकल फैक्टर्स, एटोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या क्या एटोलॉजिकल फैक्टर्स होगा? सो सबसे पहला हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, hypothalamus pituitary axis means hypothalamus pituitary means pituitary gland. Okay, hypothalamus releases the gonadotropin releasing hormone, stimulate the anterior pituitary, then releases the LH and FSH. Okay, हम सब देखा है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, इसमें कुछ दिक्कत है तो फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल CNS मीडिएटेड इंसल्ट, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, CNS मीडिएटेड इंसल्ट, रिवर्सिबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीडिएटेड इंसल्ट। ओके, हाइपोथैलेमस कहाँ आता है? ब्रेन में आता है। ओके, ब्रेन में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिवर्सिबल होता है, वापस मेंस्ट्रुएशन चालू हो सकता है, कोई कंडीशन ऐसा होता है, मीडिएटेड इंसल्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मीडिएटर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका मीडिएटर क्या होता है? इंसल्ट होता है, इंसल्ट मतलब डिफॉल्ट होता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है। फॉर एग्जांपल हेवी स्ट्रेस, हेवी इमोशनल स्ट्रेस, अगर फीमेल हेवी इमोशनल स्ट्रेस में है तो इसको मेंस्ट्रुएशन बंद होने के चांसेस होता है, बिकॉज स्ट्रेस रिलीजेस द एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट may lead to the dysfunctions of the hypothalamus, हाइपोथैलेमस से स्ट्रेस से हाइपोथैलेमस इंपेयरमेंट होता है फंक्शन से। ठीक है, हेवी स्ट्रेस
ओके नेक्स्ट सीवियर डाइटिशियन और सीवियर डाइटिंग करते हैं कोई लोग, सीवियर डाइटिंग, खाना खाता भी नहीं है, ओके उपवास करता है, नहीं तो बहुत थोड़ा कम खाता है फैट होने की वजह से, सीवियर डाइटिंग, लैक ऑफ डाइट दैट may lead to the मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस होते हो कि सीवियर डाइटिंग हो, हेवी इमोशनल स्ट्रेस हो, और हेवी एक्सरसाइज भी हो सकता है, हेवी एक्सरसाइज ओके। ये क्या है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस रिवर्सिबल सीएनएस मीडिएटेड इंसल्ट, रिवर्सिबल होता है, हम अच्छे से खाना खाए तो वापस मेंस्ट्रुएशन आ सकता है, स्ट्रेस छोड़ दिया तो मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, हेवी एक्सरसाइज कम किया तो मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीडिएटेड इंसल्ट, ओके दिस कॉजेस द हाइपोथैलेमस फंक्शंस इंपेयरमेंट, हाइपोथैलेमस इंपेयरमेंट हो गए तो पिट्यूटरी ग्लैंड से काम करना ही नहीं कर सकते, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, रिवर्सिबल सीएनएस मीडिएटेड इंसल्ट, हेवी इमोशनल स्ट्रेस, सीवियर डाइटिंग, हेवी एक्सरसाइज, ओके। नेक्स्ट होगा प्रोलैक्टिनोमा एंड हाइपर प्रोलैक्टिनोमा, सेकेंड रीजन होगा प्रोलैक्टिनोमा एंड हाइपर प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा एंड हाइपर प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से 8 हार्मोन रिलीज होता है, ओके ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओके। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर है, फॉर एग्जांपल बिनाइन पिट्यूटरी ट्यूमर है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा है तो क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है, दिस सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन का टाइम क्या होता है, बेबी जब ब्रेस्ट मिल्क पीने के टाइम मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ऑटोमेटिकली एब्सेंट होता है, मींस बॉडी का अंदर ब्लड का अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गए तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये लुटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सप्रेस करता है, सो प्रोलैक्टिनोमा एंड हाइपरप्रोलैक्टिनोमा मींस इट इज अ benign tumor of the pituitary glands that causes the excessive release of the prolactin hormone from the pituitary glands, the high blood level of prolactin hormone that may lead to the okay suppression of the pregnancy hormones, okay pregnancy hormones को suppress करता है, so means that suppression of the ovary hormones, so that may lead to the female is unable to produce the womb or unable to perform the menstruation perform करने में unable हो सकता है, so प्रोलैक्टिनोमा एंड हाइपरप्रोलैक्टिनोमा भी एक एटोलॉजिकल फैक्टर्स है, ओके। नेक्स्ट कंजेनाइटल कंडीशंस, ओके कंजेनाइटल कंडीशंस से भी हो सकते हैं, कंजेनाइटल कंडीशंस लाइक आइसोलेटेड गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी, ओके। सो बाय बर्थ से भी फीमेल में गोनाडोट्रोपिन का डेफिशिएंसी है, तो इसके वजह से भी ये मेंस्ट्रुअल एब्सेंस होने का चांसेस होता है, ओके। नेक्स्ट ट्रूमा से भी हो सकता है, ट्रूमा इन्वॉल्विंग विद हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, अगर हेड इंजरी होता है, हाइपोथैलेमस का इंजरी हो गया, सो हाइपोथैलेमस इज अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस, अनेबल टू प्रोड्यूस द GnRH, so that may lead to the unable to perform menstruation, so trauma related to involving the hypothalamus involve होते भी नहीं हो सकते हैं, ओके। पिट्यूटरी ट्यूमर से भी हो सकता है, ये बोला प्रोलैक्टिनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो भी नहीं हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर ओके पिट्यूटरी ट्यूमर से भी नहीं हो सकते हैं, वेस्कुलर डिसीज, ओके वेस्कुलर डिसीज से भी हो सकता है, वेस्कुलर डिसीज blood vessels vascular disease like hypothalamus vasculitis, hypothalamic vasculitis मतलब हाइपोथैलेमस का ब्लड वेसल्स का, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, ब्लड वेसल्स का हाइपोथैलेमस का ब्लड वेसल्स का इंजरी हो गए तो तभी भी हाइपोथैलेमस का ब्लड वेसल का इंजरी हो गए तो हाइपोपर्फ्यूजन ऑफ हाइपोथैलेमस होता है, so that will lead to the impaired functions of the hypothalamus, the unable to
मेंस्ट्रुएशन, सो मेंस्ट्रुएशन का परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ अमीनोरे. नेक्स्ट, ओरीज में कोई भी डिफॉल्ट है तो तभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता है. ओके. नेक्स्ट, यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो, मतलब वेजिना का जो नॉर्मल कैनल होता है, कैनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो तभी भी नहीं हो सकता है. उसका रिलेटेड वेजिनल रिलेटेड कॉजेस क्या होगा एंड यूट्रस रिलेटेड कॉजेस क्या होगा, ओरी रिलेटेड